Hi everyone. So we are here again with another question of lead code, that is reverse nodes in K group. So this is the hard level question of lead code. So let's start with it. So here we are given with the head of a linked list and we have to reverse the nodes of the list K at a time and return the modified list. K is a positive integer and is less than or equal to length of the linked list. If the number of nodes is not a multiple of k, then left out nodes in the end should remain as it is. You may not alter the values in the list node, only nodes themselves may be changed. Fine. So let's start with this question and try to understand कि ये क्वेश्चन करने के लिए बोल क्या रहा है एग्जैक्टली बिकॉज पहले तो ये हार्ड क्वेश्चन है सो ये हार्ड लेवल पढ़ के ही बच्चों को लगता है कि ये कैसे होगा बट believe me this question is really very easy if you understand it very thoroughly. Fine. So let's start with it. First of all, we are given with the first test case, that is 1 2 3 4 5 and k is 2. Okay. Now what the question wants us to say is wants us to do is that first of all you have to take the length of k. ठीक है. अगर तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 है और तुम्हारी k की लेंथ 2 है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम 1 और 2 को लोगे, रिवर्स करोगे एंड उसके बाद लिंक लिस्ट में एज इट इज डाल दोगे. ठीक है. तो पहले वाले उस पर तुम्हारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 1 3 4 5. ठीक है. सो अगर मैं पहली बार इसको करूँगी तो मेरे पास आना चाहिए 2 1 3 4 5. ठीक है. अब जब मैं उसको दूसरी बार करूँगी तो मुझे ये दोनों लेना पड़ेगा, डैट इज़ 3 4. और जब मैं इसको दूसरी बार करूँगी तो मेरा आंसर आना चाहिए 4 3. तो मेरे पास क्या आएगा 2 1 4 3 5. अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास जो लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट है दैट इज़ लेस देन के, यानी कि अगर मेरे पास 5 साइज़ की लिंक लिस्ट है, के का वैल्यू 2 है, 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 3. That means in this particular question, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगी तो I will get the remainder of 1. That means that one number in this particular linked list will be returned as it is. Okay. अगर मेरे पास 6 होता और 2 होता तो you will get the remainder of 0. So no number would be having the length less than k. तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ रही है कि अगर मेरे पास जो लेंथ ऑफ द लिस्ट है उसको k से डिवाइड करेंगे और उसका वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आता है तो उतने पर्टिकुलर लेंथ के लिंक लिस्ट को तुम्हें एज इट इज़ रिटर्न कर देना है. Got it? So this is what the question wants us to do. If you take another example, you are having 1 2 3 4 5 and k is 3. Now k is 3, that means you have to take first three numbers of the linked list, reverse it and return it as 3 2 1 4 5. Now again we will go for 4 5, but 4 5 is having length of 2. In that case your linked list, your particular nodes will be returned as it is, that would be 4 5. Now you would be thinking that its length is 5, its k is 3, and if you will divide 5 divided by 3, so you will get a remainder of 2. Fine. So 2 nodes would be returned as it is. So let's start with this question and analyze what things are needed for this. First of all, तुम्हें एक हेड चाहिए जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे होगे क्वेश्चन को. सेकेंड चीज़ इस क्वेश्चन के लिए मुझे टेल चाहिए होगा. ठीक है. सो आई नीड अ टेल, आई नीड अ हेड. ठीक है. Now what the head and tail would be doing here is it would help me to decide that मुझे टेल को के तक लेके जाना होगा एंड मुझे डिसाइड करने में ये हेल्प करेगा कि मुझे कितना आगे जाना है. ठीक है. तो टेल वुड बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. गॉट इट. सेकेंड चीज़, तुम्हें इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है. लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए वी ऑल्सो नीड टू मेक अ फंक्शन फॉर रिवर्स जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा. फर्स्ट इज ऑफ हेड एंड सेकेंड इज ऑफ टेल. ठीक है. वाई आई एम टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट ऑफ हेड एंड सेकेंड ऑफ टेल, बिकॉज जो अगर सिर्फ हेड लेती हूँ तो मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि मुझे कितनी रेंज तक जाके उसको रिवर्स करना है. That's why I need to have head and tail, both of them, to get the range of the link list. इतनी मुझे रिवर्स करनी है. So let's start making first requirement of this particular question, that is
your reverse function. Now why we are making two arguments, I told you that because we have to decide the range of the ring list जितना हमें reverse करना है. That's why we need a head and we need a tail as well. हेड से हमें रेंज नहीं पता चलेगी, टेल से हमें रेंज पता चलेगी. हेड अगर मैं सिर्फ लेती हूँ तो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देगा, पर अगर मैं टेल लूँगी तो मुझे एक पर्टिकुलर रेंज पता है कि मुझे इस हेड से लेके इस टेल तक ही रिवर्स करना है. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल हैव अ कंडीशन दैट हेड शुड इक्वल नल and if it's having only one element, sorry, it should be or. If it's having only one element, then we have to return null as it is. Okay, so my answer would be return head. Now after this question, what we have to do is we have to make three nodes again. So what those three nodes would be: list node, current, that will be given value as head. Second will be list node, next, that will be given value as null. Third would be list node, previous, that would be given value as null. Okay, now after this what we have to check is that जब तक current null के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब मुझे उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही करना है, तो while current is not equal to tail, sorry, is not equal to tail. सो लेट्स से अगर मैं 1 2 3 को रिवर्स करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे टेल को 4 पे रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टेल अगर 4 पे नहीं रहेगा तो ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा. लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यू आर गोइंग टिल करेंट इज गोइंग टिल 3, सो करेंट 4 पे नहीं जाएगा बिकॉज 4 टेल के इक्वल है, एंड उस केस में हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे. तो तुम्हारा 1 2 3 तक ही रिवर्स होगा, 3 2 1, 4 पे नहीं जाएगा. पर अगर तुम टेल को 3 पर रखोगे तो 1 2 रिवर्स होगा 2 1 पे. ठीक है, तुम्हारा 1 2 3 रिवर्स नहीं होगा. सो कीप दिस इन माइंड बिकॉज दिस विल बी यूज इन द लेटर अप्रोच. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव नेक्स्ट एज करेंट का नेक्स्ट. करेंट को देना है तुम्हें, करेंट के नेक्स्ट को तुम्हें देना है प्रीवियस, प्रीवियस को तुम्हें देना है करेंट, और करेंट को तुम्हें देना है नेक्स्ट. ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस थिंग योर reverse node would be there in previous. So I am not going deep into the how we have coded this because this is a very simple code for reversing a linked list. You can do a dry run on any of the linked list and you would be finding out that it is reversing the linked list into a reverse linked list. So if I will check for this particular, you can check for this particular linked list, take head as 1, tail as 5, and try to dry run this case. If you will dry run, you will get that previous would be at 5, and you will returning previous, you will get the answer as 5 4 3 2 1. So this would be working fine for this. Now as I said that ऊपर क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमें एक हेड चाहिए होगा, एक टेल चाहिए होगा, बिकॉज हमें रेंज पता करनी है. तो टेम को मैं क्या दूंगी? हेड दूंगी. और टेल को क्या मैं दूंगी? ऑब्वियसली आई विल गिव इट हेड. ओके, अब टेल को मुझे कब तक करना है? जब तक मैं के पे नहीं पहुंच जाती. नाउ टेल इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट, सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. If you are having the k value as 2, then in that case wait, I think some mistake is in here. It should be int k. Okay. And the name of the, wait a second, name of the linked list was reverse k group. Okay, so I think I have done some mistake here. कोई नहीं, होता रहता है ये सब. तो reverse
के ग्रुप, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग इज फाइन, के ग्रुप, ओके, G is capital. Okay, so this is the function, and first of all we have to make temp as head and tail as head. Now ये तो हो गया, and then I have to give the range. I is equal to 0, I less than k, I plus plus, give tail, if tail is there, if tail is not there, then obviously we are on the case जब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारे पास k का वैल्यू सफिशिएंट नहीं है, यानी कि इस वाले केस में अगर मेरे पास जो के मेरा टेल है वो यहाँ पर है तो हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो जस्ट रिटर्न इट एज इट इज़, तो रिटर्न कर देना हेड को। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास सफिशिएंट केस सफिशिएंट वैल्यूज़ है, अगर मैं टेल के नेक्स्ट जा सकती हूँ, तो आई विल डू टेल का नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज़ डन टिल हियर। नाउ अब तुम ये सोचोगे कि यहाँ पर k-1 तक क्यों नहीं गए, अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो अब 3 पे चल जाएंगे ना। अगर मैं k तक चलाऊँगी तो जस्ट अंडरस्टैंड, 2 आइट्रेशंस के अंदर आई वुड बी ऑन 3, आई वुड नॉट बी ऑन 2। सो आई सेड यू दैट अगर तुम्हें 1 to 3 को 1-2 को अगर तुम्हें रिवर्स करना है तो तुम्हारा टेल का वैल्यू 3 पे होना चाहिए, बिकॉज करंट विल बी नॉट बी इक्वल टू टेल। करंट टेल के जस्ट प्रीवियस तक जाएगा और उसको रिवर्स करेगा। अगर वो टेल के इक्वल हो जाएगा तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे एंड मेरा पूरा का पूरा जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स होके आएगा। अगर मैं 3 पे लूँगी तो 2-1 रिवर्स होके आएगा। अगर मैं 2 पे लूँगी टेल को तो मेरा से 1 रिवर्स होगा। तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू ट्रैवर्स द लूप टिल k, ठीक है, k-1 नहीं। सो दिस इज़ आई थिंक अंडरस्टैंडेबल बाय यू गाइज हाउ वी आर डूइंग दिस। सो टेल का वैल्यू अब क्या होगा, टेल का वैल्यू अब 3 पे होगा और टेम्प कहाँ पे होगा, टेम्प मेरा 1 पे होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली जो 3 है और 1 है, यानी कि ये वाला लिंक लिस्ट मुझे रिवर्स करना है। तो जो रिवर्स होके आएगा वो क्या आएगा, 2-1 आएगा, ठीक है। रिवर्स होके क्या आएगा, 2-1 आएगा। अब 2-1 का जो हेड होगा मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा किसी नए हेड में, तो वो क्या होगा, लिस्ट नोड स्टार न्यू हेड मान लेता है, ठीक है। अब न्यू हेड को हम लोग रिवर्स करेंगे एंड रिवर्स करके हम उसको क्या देंगे, हम उसको टेम्प देंगे, हम उसको टेल देंगे। तो जब ये वाली चीज़ रिवर्स होके आएगी तो जो न्यू हेड है दैट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2। टेल कहाँ पर है, टेम्प कहाँ पर है, वो 1 पे है, और टेल कहाँ पे है, वो 3 पे है। नाउ दिस इज डिसाइडिंग फैक्टर, दिस 3 थिंग्स आर डिसाइडिंग व्हाट नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू टेक। ओके, नाउ तुम्हें से लग रहा है कि इसके अंदर रिकर्जन यूज़ हो सकता है, क्यों, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिपीटेडली एक ही स्टेप को करने वाले हैं आगे उसके लिए, ठीक है। हम लोग रिपीटेडली एक ही चीज़ करेंगे और वो क्या है, वो ये है कि जो तुम्हारा न्यू हेड है उसको वापस से रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके वापस से हम उसके अंदर डालेंगे और वापस से के तक हम लोग टेल की रेंज निकालेंगे, वापस रिवर्स करेंगे। सो देयर इज समवेयर वी आर रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। ओके, सो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू, ठीक है। एंड हमें स्टॉप कहाँ होना है वो भी बताऊँगी अभी। तो अभी हमारे पास टेम्प का वैल्यू 1 है और जो भी अब इसके आगे चीज़ें आएंगी वो टेम्प के नेक्स्ट पे आएगी, ठीक है। अब इसके जो भी इसके आगे हमें लिखना है वो हमें टेम्प के नेक्स्ट पे डालना है, 1 के नेक्स्ट पे डालना है, ठीक है। अब जो 3-4 है वो रिवर्स होकर 4-3 आएगा, वो टेम्प के नेक्स्ट पे आएगा। तो जो हमारे पास रिवर्स होकर चीज़ें आएंगी वो कहाँ पे आएगी, टेम्प के नेक्स्ट पे, ठीक है। और अब मेरी हेड का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 से लेके टेल तक जाना चाहिए। तो 3, 4, 5 एंड उसके बाद 5 तक जाएगा और 3 और 4 रिवर्स हो जाएगा और 4 और 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिवर्स के ग्रुप, ठीक है, रिवर्स के ग्रुप, और मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को टेल से स्टार्ट करना है और मुझे के तक जाना है, ठीक है। तो अब मैं वापस से हेड को मैंने चेंज करके टेल कर दिया है, क्योंकि अब टेल का वैल्यू 3 और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है अब, ठीक है। सो आई हैव टू स्टार्ट विथ टेल नाउ, फाइन।
तो अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, टेम्प के नेक्स्ट पे हमें क्या स्टोर करना होगा, रिवर्स वैल्यू ऑफ 3 4 दैट इज़ 4 3, सेम स्टेप हो रहा होगा। और टेल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे। अब टेल का वैल्यू अपडेट होकर 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड तुम्हारा टेम्प का वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 के नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, तो 3 के नेक्स्ट जो है हमें 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है ऊपर कि टेल का वैल्यू अगर नल है तो उस केस के अंदर हमें 5 रिटर्न कर देना है, हेड एज इट इज़ रिटर्न कर देना है। और हेड क्या है अभी मेरे पास, हेड इज टेल का वैल्यू 5 है। तो दिस इज़ अ रिकर्सिव स्टेप एंड दिस स्टेप विल अलाउ यू टू डू दिस क्वेश्चन इन अ वेरी गुड मैनर। एंड इसलिए इसको हार्ड क्वेश्चन बताया गया क्योंकि इसके अंदर हमने लिंग्विस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और रिकर्शन यूज़ किया है। एंड रिकर्शन सोचना is like a difficult task. So how you will think about recursion? Let's do some चर्चा on this कि recursion के बारे में कैसे समझोगे कि recursion करना है इसके अंदर। तो जब भी तुम्हें ऐसा दिख रहा हो कि रिकर्सिवली रिपीटेडली कोई स्टेप करा जा रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमें दिख रहा था कि हम रिपीटेडली एक काम करते जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं रिकर्शन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे n-1 का काम करके तो दे देगा रिकर्शन, n का काम मुझे करना है जो कि मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, मैंने उसका फॉर लूप लगा के। तो दिस इज़ व्हाट रिकर्शन हेल्प्स अस टू डू। तो n-k, इसमें n-1 n-k का काम हम खुद करेंगे और बाकी जितने भी लिंक्ड लिस्ट बचा है उसका काम मुझे रिकर्शन करके देगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक दैट किसी क्वेश्चन के अंदर हम लिंक्ड लिस्ट रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट दिस इज़ a very good way to solve this question. And if you are able to understand this question, that your concepts of recursion and your concept of linked list are strong. Okay, now why we are returning new head here? बिकॉज हमारा जो 2 था वो न्यू हेड पे ही स्टोर था, तो अभी हमें 2 को रिटर्न करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिंक्ड लिस्ट एज इट इज़ मेरे पास आ जाएगी। तो मुझे न्यू हेड को ही रिटर्न करना पड़ेगा एंड न्यू हेड जो है मेरे को ये वाली लिंक्ड लिस्ट जो कि डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मुझे दे देगा। लेट्स ड्राई रन दिस ऑन अनदर टेस्ट केस, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। अब इस बारे में बताओ, इस बारे में कैसे करेंगे। अगर मेरे पास k इज इक्वल टू 3 है तो मुझे क्या करना है, मुझे इतने पार्ट को रिवर्स कर देना है और जो कि मेरे पास आएगा 3 2 1 एंड इतने पार्ट को एज इट इज़ डाल देना है। तो सेम चीज़ करना है हमें एक हेड लेना है, एक टेल लेना है। टेल को कब तक लेके जाना है, जब तक k का वैल्यू 3 नहीं हो जाता, यानी कि टेल मेरा यहाँ पे होगा। फिर जब मैं टेल को यहाँ पे करूँगी तो मैं एक न्यू हेड बनाऊँगी और न्यू हेड में 3 को स्टोर कर दूँगी। आई विल टेल न्यू हेड में 3 को स्टोर करना है तुम्हें, ठीक है। टेम्प में तुम्हारा क्या होगा, स्टोर 1 स्टोर होगा। टेल में क्या स्टोर होगा, टेल में 4 स्टोर होगा, ठीक है। और तुम्हारा लिंक्ड लिस्ट कैसा दिखेगा, 3 2 1। अब जो भी चीज़ें आएंगी वो इसके आगे आएंगी, तो किसके आगे आएंगी, 1 के आगे आएंगी। 1 किस में स्टोर था, टेम्प में स्टोर था, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट पे आएगी। तो इसलिए हमने रिकर्सिव कॉल किस पे किया है, टेम्प के नेक्स्ट पे किया है। फिर रिवर्स के ग्रुप निकालेंगे और टेल से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या करा है, मैंने 1 2 3 तक कर लिया, 4 तक आ गई हूँ मैं। अब मुझे 4 के आगे चीज़ें करनी है जो करनी है, तो मैं टेल को कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 4 से स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेड की जगह टेल डाला है। उसके बाद 4 और 5 जो है, इट इज़ नॉट ऑफ सफिशिएंट लेंथ ऑफ k, तो इट वुड बी रिटर्न एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू this condition which I have written now, ठीक है। So I think this is very clear to all of you that how we are doing this thing, how we are chasing the number, how we are doing recursion, and how we are returning our number. So let's run the test case and see that it's working fine or not. So it's working fine. तो दोनों टेस्ट केसेस हमने करके ड्राई रन करके देख लिए कि वो कैसे वर्क कर रहा था। सबमिट भी कर देते हैं। Okay, it's showing here. Yeah, so it's accepted and we have successfully done the hard question, and it was using 2 concepts. First was recursion and linked list, and I think this all things are clear to you. If not,
do dry run by yourself, because that would help you a lot to understand this question. It's a little bit tricky, but you will understand if you will do dry run on at least 2 test cases. So I think it's enough for today. Thank you so much. Bye bye.